Hello student, today in this session I am going to discuss some difficult problem related to the three address code generation. And previously I have given you the concept about the if then statement, do while statement, switch and cases and for loop. So but in the examination there is not a simple type of question is coming. It is mixed type of question in which in while statement there is if, there is a do, there is a for, and mixed type of statements are given. So I in this session I am going to solve some questions, mixed type of question which comes and which previously came to the UPTU examination. So firstly I am going to tell you the one example, that is the while p less than q and r greater than s, do if is equal to 1, then this statement will be executed. Otherwise, if this while this condition is met out, then this statement will be executed. So as you are seeing here that this is the while statement. In this, if is implemented and the else of the if is implemented through while. Okay, so it is a mixed type of statement. So you have to care, uh, uh, you have to give you extra care while writing the three address code. Okay, so as you know that all the statements will be executed, will be implemented or written through the three address code. So first statement will be if p is less than q. Okay, if p is less than q, go to, okay, मतलब क्या होगा, at there is a and is there is and condition, so we have to check this condition as well as this condition. So हमें क्या करना होगा, if p is less than q, go to, और हम लोग क्या करेंगे, टू यहाँ पे लिख देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक दैट कंडीशन आल्सो. बट इफ दैट पर्टिकुलर condition is not met out, is not satisfied, it will move to the out of the program. Okay, तो यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, गो टू नेक्स्ट हो जाएगा. अब ये कंडीशन चेक करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे. अदरवाइज ये भी क्या करेगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा और प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, गो टू 4. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इफ बोथ कंडीशंस आर मेट आउट, देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो इफ p इज इक्वल टू 1, गो टू, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन क्या होगा, इट विल मूव टू द एल्स स्टेटमेंट. ओके, सो अभी हमें नंबर नहीं मालूम, सो वी विल नॉट राइट हियर. If this condition is met out, then this statement will be executed. It means t1 is equal to q plus 1 and 7 will be q is equal to t1. Okay, and after execution of that particular statement, what will happen, it will go to the statement, while statement. अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक द वाइल स्टेटमेंट. सो इट विल मूव टू गो टू 0. ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो टू 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गो टू. अब हम लोग चेक करते हैं. यहाँ पे 9th पे आते हैं. अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया. ये क्या होगा, अगेन कंडीशन चलता रहेगा. लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, गो टू 9 पे, और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ p लेस देन s, गो टू. हमने अभी आपको बताया, चाहे तो आप यहाँ पे p लेस देन और इक्वल टू s भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इट इज़ बेटर टू राइट इन 2 steps. If it is wrong, then we have to check. If p is equal to s, then go to. If it is wrong, it means क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगेन अगर ये रॉन्ग होता, ये कंडीशन रॉन्ग होती, तब भी क्या होगा, हम लोग यहीं पे आएंगे चेक करने के लिए स्टेटमेंट को. गो टू क्या हो जाएगा, 0. ओके, 12th नंबर पे क्या आ जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे,
गो टू 12 पे चले जाएंगे, और अगर ये भी है तो 2 हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो हम लोग 0 नंबर पे पहुंच जाएंगे। अब देखो क्या है 12th नंबर पे, ठीक, क्या होगा, अगर ये इफ़ दिस कंडीशन इज मेट आउट देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये T2 इज इक्वल टू A+3, 13 क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू T2 एंड 14 क्या हो जाएगा। अब देखो क्या है कि ये क्या होगा, अपने में लूप चलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गो टू ये 9 हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर ये हो गया, ठीक, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अगेन वी विल चेक दिस स्टेट कंडीशन बिकॉज इट इज अ वाइल लूप। ओके, अगर ये फॉल्स होता है, ठीक, अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो हमने बताया कि गो टू 0 पे चला जाएगा, ठीक, और अगर फॉल्स नहीं होता तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक। गो टू नेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया हमने, एंड यहाँ पे गो टू क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा गो टू 16 एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा 15 होगा, ये गो टू 15 और ये गो टू 15, ठीक। इस तरह से हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। तो देखो है क्या कि इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट द 3 एड्रेस कोड, बट यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा केयर सो दैट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट विल बी नॉट डिस्टर्ब। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें बहुत ही केयर थोड़ा सा रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कब लूप के बाहर जाएगा, कब लूप चेक करेगा, पहले पे कब जाएगा, इस पे कब जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक वाइल है, यहाँ पे भी, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक लूप ये गो टू 9 है तो यहाँ पे मूव करता रहेगा, ठीक। और उसके बाद क्या है, देखो गो टू 0, ये अगर एग्जीक्यूट होगा तो फिर चेक होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तब भी चेक होगा, ठीक। क्लियर है। सो तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मूव तो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक फॉर लूप है i इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या है i लेस देन और इक्वल टू 22 i प्लस प्लस, इन दिस the body of the for loop is like that, if x is equal to y, a is equal to b plus c, else this statement will be executed and this is the do while loop। ओके, तो अब हमें इसका एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ठीक। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ फॉर लूप है। तो फॉर लूप में ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, एक इनिशियलाइजेशन दिया था और एक कंडीशन दी रहती है और एक इंक्रीमेंट हमें करने रहता है, ठीक है। तो देखो सिंपल है इसका भी, 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, इफ़ क्या होगा i इज इक्वल टू, नहीं पहले हम लोग क्या करेंगे, i का इनिशियलाइजेशन करेंगे, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सेकेंड क्या हो जाएगा t1 इज इक्वल टू i, थर्ड क्या हो जाएगा इफ़ t1 लेस देन 20 है, गो टू, अभी छोड़ देते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा, हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये लेस देन 20 है, अगर फॉल्स है तो हम लोग चेक करेंगे अगेन कि ये इक्वल तो नहीं है, गो टू इफ़ दिस condition is not met out, it means it move to the next program। ओके, सो इट विल मूव टू द गो टू नेक्स्ट। तो हम लोग अभी छोड़ देते हैं, नंबर हमें मालूम नहीं। 6 नंबर क्या हो जाएगा, ये गो टू 6, ये गो टू 6, अगर ये कंडीशन मेट आउट होती तो ये कंडीशन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक आउट इफ इज इक्वल टू वाई, गो टू 7, अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स होती है, ठीक। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक। तो हाँ भैया हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू Q प्लस R, और 9th पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू T2। ओके, A इज इक्वल टू T2, अरे ये क्या है, B प्लस सी है, 8 पे क्या हो जाएगा, B प्लस सी है, ये वाला स्टेटमेंट है, B प्लस सी और A इज इक्वल टू T2। अब क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो क्या होगा, हमारा कंडीशन जो हमारा लूप है उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू
T1 प्लस 1 हो जाएगा एंड इट विल मूव टू द फॉर लूप। इसका मतलब कहाँ पे चला जाएगा, गो टू 3, ठीक। और ये कहाँ पे आ जाएगा, 12 स्टेटमेंट पे। अब देखो क्या है, हमने जैसे कहा था क्या कहा था कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन चेक होगा, ठीक, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो किस पे आ जाएगा, गो टू 12 पे, ठीक। 12 पे आ गए हम लोग। अब 12 में क्या देखो क्या है, वाइल है, वाइल जे लेस देन 20 है तो क्या होगा, डू है, मतलब ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा देन कंडीशन चेक होगी। तो अब देखो वाइल क्या है, जे लेस देन 20 है तो इसका मतलब पहले जे को इनिशलाइज करेंगे, जे इज इक्वल टू 10। 13 पे क्या होगा, T3 इज इक्वल टू जे, एक नया हमने वेरिएबल ले लिया जिसमें जे की वैल्यू डाल दी। 14 पे क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा पहले तब कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर एंड 15 पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू T4, ओके। 16 पे क्या आ जाएगा, अब देखो क्या है कि इसमें देखो क्या है कि ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन हो गया, चेक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक, क्लियर है। लेकिन इससे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने कहाँ पे लिया था, इनिशलाइज किया था T3, तो यानी कि T3 इज इक्वल टू T3 प्लस 1 करेंगे। अब 17 पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ T3 इज लेस देन 20, अगर है तो गो टू कहाँ चला जाएगा, गो टू यहाँ पे आ जाएगा 14 पे। और अगर ये फॉल्स है, ठीक, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या, अगर ये फॉल्स होता है, ये कंडीशन फॉल्स होती तो अगेन फिर फॉर लूप में चला जाएगा, इसका मतलब गो टू 3 पे चला जाएगा, ठीक, क्लियर है। और 19th क्या हो जाएगा, गो टू नेक्स्ट। तो अब जहाँ जहाँ ये है तो ये क्या हो जाएगा, गो टू 19 कर देंगे, ठीक, ये 19 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पहले हमने इनिशलाइज किया इसका, फिर ये चेक किया कंडीशन कि ये लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं है 20, अगर है देन we will move to execution of this statement I have executed here. After that the program loop will be incremented by 1, यहाँ पे increment कराया, then it will move to for loop, ठीक है। बट इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट वी विल मूव टू दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने देखो कंडीशन फॉल्स हुआ, गो टू 12 आ गए, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट का ये कोड लिखा, ठीक है, इट विल एग्जीक्यूटेड, ठीक। इफ इट इज फॉल्स अगेन we will move to the for loop. So it's very simple in writing the 3 address code. You have to just look all these statement where we have to move to the next, go to next, or we have to move to the condition checkout, or we have to check the loop condition. Okay, so we have to give some extra lookup on these issues. So it is very simple to write. I will give you some exercise also in the Google Classroom so that you can do it. If there is any problem you can share with me, okay. So there is one topic is left out, the 3 address code of the arrays, okay. So in the next session we will discuss 3 address code for arrays, okay.